بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو کیمسٹری ہب بائی عمر سلیم۔ کیمسٹری کلاس 10 چیپٹر نمبر 16 ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں بچوں۔ چیپٹر کا نام ہے الیکٹرو کیمسٹری۔ آج ہماری لیکچر سیریز کا لیکچر نمبر 16 ہے، جس کے اندر ہم ٹاپک اسٹڈی کریں گے 16.4۔ ٹاپک کا نام ہے بچوں کروجن۔ کروجن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس چیز کی سب سے پہلے ڈیفائن دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اٹ از اے نیچرل پروسیس، یہ قدرتی عمل ہے۔ اٹ از a natural process due to which a metal suffers gradual decay۔ ایک میٹل جو ہے وہ لگاتار ٹوٹتی ہے، تباہ ہوتی ہے، ڈیکے ہوتی ہے۔ when it interacts chemically with its environment وہ کہتا ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے، جس عمل کے اندر یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، جس کے اندر ایک میٹل جو نا میٹلز وہ گریجول ڈیکے ہوتی ہے، لگاتار ٹوٹتی ہے جب وہ اپنے کیمیکلی طور پر انٹریکٹ ہو جاتی ہے کس کے ساتھ، ماحول کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اوپر والی سرفس ہوتی ہے، ڈیورنگ دا سرفس آف میٹل از کوٹنگ during this interaction the surface of metal is coating with compounds such as oxide, sulfide and carbonate۔ تو اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے نا کروجن کی، وہ بچوں ہوتی ہے رسٹنگ۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ رسٹنگ ہوتا ہے زنگ لگنا۔ رسٹنگ ہم کس کو بولتے ہیں بچوں؟ زنگ لگنے کے عمل کو رسٹنگ بولا جاتا ہے۔ رسٹنگ کس کو بولا جاتا ہے بچوں؟ زنگ لگنے کے عمل کو، ٹھیک ہے۔ آئرن کو زنگ لگنا، رسٹنگ آف آئرن، رسٹنگ آف، اس کی بیسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ رسٹنگ آف آئرن، لوہے کو زنگ لگنے کا عمل جو ہوتا ہے، دیکھیں نا آپ، جب زنگ لگنے کا عمل شروع ہوتا ہے بچوں تو وہ لگاتار جو لوہا ہوتا ہے وہ گلتا سڑتا رہتا ہے۔ تو دو چیزیں زنگ لگنے کے عمل کے لیے بچوں شرط ہے، کیا شرط ہے؟ موئسٹ ایئر، موئسٹ ایئر، نمی والی ہوا، نمی والی ہوا چاہیے، یعنی کہ ہوا ہو، آکسیجن ہو اور اس کے اندر پانی بھی موجود ہو۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن اینڈ واٹر پریزنٹ ان دا ایٹماسفیئر، آکسیجن اینڈ واٹر پریزنٹ ان دی ایٹماسفیئر، یہ جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر موجود ہوں گے تو آپ کے پاس زنگ لگنے کا عمل کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ once iron began to rust، جب ایک دفعہ جب آئرن کو زنگ لگنا شروع ہوتا ہے، once iron began to rust، جب ایک دفعہ اس کو زنگ لگنا شروع ہوتا ہے بچوں، the process will continue، the process جو ہوتا ہے، جو عمل ہے، the process will continue، تو عمل جو ہے وہ بچوں لگاتار جاری رہتا ہے۔ جب ایک دفعہ زنگ لگنا شروع ہوتا ہے تو عمل جو ہے وہ لگاتار جاری رہتا ہے۔ تو میٹل ول کروڈ گیون انف ٹائم، تو آل دا میٹل، ایک وقت ایسا تھا تمام کے تمام میٹل جو ہے نا، آل دا میٹل جو ہوتی ہے نا، آل میٹل ول کروڈ گیون انف ٹائم، اس کو کافی زیادہ ٹائم جب لگا، سلو پروسیس ہوتا ہے نا، سلو اینڈ کنٹینیو ایٹنگ آف اے میٹل، ٹھیک ہے، سلو پروسیس ہوتا ہے، سلو
and continuous eating of metal. किसी मेटल को स्लो लगातार खाया जाना क्या कहलाता है बच्चों? रस्टिंग कहलाता है। तो रस्टिंग होती कैसे? ये आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लगा ये कुदरती अमल है। कुदरती अमल है, हवा के अंदर जो है वो नमी वाली हवा मौजूद होगी तो जंग लगने का अमल शुरू होता है। जंग लगने का अमल शुरू होता कैसे है, पहले उस चीज़ को देख लेते हैं कि जंग लगता कैसे है। जारी बात लोहा तो पड़ा रहता है बाहर हवा के अंदर, तो उसको जंग कैसे लगता है? फर्ज करो बच्चों मेरे पास ये लोहे की एक शीट है, मेरे पास लोहे की क्या है ये एक शीट। तो इस शीट के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ हिस्से के ऊपर फर्ज करो कि ये वाला वो वाला हिस्सा है जहाँ पे खराश लग गई है। क्या लग गई? खराश लग गई या डेंट पड़ गया है? खराश लग गई या क्या पड़ गया बच्चों? डेंट पड़ गया है। तो डेंट पड़ने के अमल से क्या होता है? लोहे का फार्मूला, आयरन का फार्मूला बच्चों क्या होता है? Fe। तो जब जहाँ पे जिस हिस्से के ऊपर जंग लगेगा, डेंट लगेगा, उस हिस्से के अंदर जो आयरन मेटल है ना, आयरन मेटल वो क्या कर देगी? आयरन मेटल बच्चों आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? लूज कर देगी। जिस हिस्से के ऊपर जंग डेंट पड़ गया या खराशें लगी है ना लोहे को, तो वो नमी वाली हवा के ऊपर आ जाएगी। वहां पे अमल पहले सबसे पहले जो अमल शुरू होता है वो वहां पे आयरन होगा, वो क्या करेगा? एक आयरन जो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। यहाँ पे 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? लूज कर देगी। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन गेन दीज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन जो है बच्चों, ऑक्सीजन gains these electrons in the presence of water, in the presence of water to form hydroxide ion। ठीक है, वो क्या करेगी? ऑक्सीजन जो है इन इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगी। ऑक्सीजन, ये पीछे हम रिएक्शन काफी दफा पढ़ के हैं, वाटर प्लस आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑक्सीजन क्या करेगी? पानी की मौजूदगी में इन 4 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगी। क्या बना देगी बच्चों? हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगी। कौन सा आयन बनेगा बच्चों? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो अब 2 चीजें आपके पास मौजूद हैं बच्चों। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन तो इस्तेमाल हो गया ना यहाँ पे। अब ये आयरन का आयन मौजूद है और हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। हाइड्रोक्सिल का आयन और ये जो आयरन का आयन है और ये जो हाइड्रोक्सिल का आयन है, ये तो दोनों आपस में क्या होंगे? आपस में कंबाइन होंगे। Fe then react with more oxygen and water to form iron hydroxide which is a rust। अब देखें बच्चों, जो आयरन है ना, आयरन यहाँ पे 2 आपके पास Fe2 पॉजिटिव है, वो क्या करेगा? वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बनेगा? Fe2OH ट्वाइस। ठीक है, तो Fe2OH ट्वाइस जो मजीद ये जो Fe2OH ट्वाइस है ना, ये मजीद ऑक्सीजन और मजीद पानी के साथ मिलेगा तो आपके पास जंग लगने का अमल क्या हो जाएगा बच्चों? शुरू हो जाएगा। आपके पास जंग लगने का अमल क्या हो जाएगा? ये देखें, ये जंग लगी, ये जंग का फार्मूला होता है FeOH ट्वाइस। ये आपके पास जंग लगने का अमल इस तरह शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ चीजें। तो क्रूजन 16 पॉइंट बच्चों 4 टॉपिक है क्रूजन। क्रूजन जो है वो एक कुदरती अमल है जिसके अंदर मेटल जो है वो ग्रेजुअल डिके होती रहती है व्हेन इट इंटरेक्ट केमिकली विद इट्स environment। During this interaction, the surface of metal is coating with compounds such as oxide, sulfide, and carbonate। A common example क्या है? Rusting of iron, where iron react with oxygen and water present in the atmosphere to form hydrated iron। Once iron began to rust, the process will continue as rust is porous and allow both air and moist to come into। तो जारी बात है, जब वो पोरस हो जाएगी, वहां से रस्ट लगना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर मॉइस्ट एयर जो है वो आती रहेगी, हवा भी आती रहेगी, फ्रेश एयर भी आती रहेगी। हैंस ऑल द मेटल विल करोड गिवन इनफ टाइम। तो सर वो कहता है प्रोसेस ऑफ क्रूजन ऑफ आयरन अपेयर टू रिक्वायर 2 इंपॉर्टेंट केमिकल, ऑक्सीजन एंड वाटर। 2 चीजें चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, विच आर इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आयरन को जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है
ऑक्सीजन जो इन इलेक्ट्रॉन को हासिल करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाती है, जो आयरन का आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आपस में मिलके आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फिर ये मजीद पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपके पास जंग लगने का अमल क्या हो जाता है बच्चों, शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे बचा कैसे जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन, क्रूजन से बचा कैसे जा सकता है बच्चों? क्रूजन सबसे पहला जो तरीकाकार है वो कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस है, कि मेटल की जो सरफेस है उसको किसी के साथ कोट कर दिया जाए, उसको किसी के साथ क्या कर दिया जाए बच्चों, कोटिंग कर दी जाए। तो क्रूजन कैन बी अवॉइडेड बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद सम बैरियर दैट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद द एटमॉस्फेयर। वो कहता है किसी ऐसी चीज दरमियान में ले आए जाए जो कि जो मेटल को जो है एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कॉन्टैक्ट करने ना दे। फॉर दिस पर्पज द मेटल सरफेस आर प्रोटेक्ट बाय आइदर ग्रीस, या तो उसके ऊपर ग्रीस लगा दी जाती है, विद ऑयल और पेंट, या उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर। जैसे अक्सर लोहे को ना जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या, जैसे अक्सर घरों के अंदर जो गार्डर पड़े होते हैं या टीआर गार्डर पड़े होते हैं, तो उनको जो है वो कलर किया जाता है ताकि उनको जंग ना लगे। अदर मेथड ऑफ प्रोटेक्शन आर गैल्वेनाइजिंग, एक गैल्वेनाइजिंग का मेथड है, हम आगे पढ़ेंगे भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी होती है। ठीक है, आगे आता है गैल्वेनाइजिंग क्या होती है। गैल्वेनाइजिंग कहता है गैल्वेनाइजिंग कॉमन मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन और स्टील फ्रॉम रस्टिंग, ये आम मेथड है जो कि लोहे को और स्टील को जंग से बचाता है। इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ एन आयरन शीट इन अ बाथ ऑफ मोल्टन जिंक। वो कहता है कि आयरन की जो शीट होती है ना, आयरन जिसको हमने जंग से बचाना है, उसको हम मोल्टन पिघले हुए जिंक के अंदर क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं, बात कर देते हैं। अ लेयर ऑफ जिंक मेटल की जो लेयर है गेट डिपोजिट, वो जम जाती है ऑन आयरन शीट, किसके ऊपर, आयरन शीट के ऊपर जम जाती है। एंड प्रिवेंट रस्टिंग, उससे क्या रहता है, लोहे को जो है वो जंग से बचाया जा सकता है। टिन कैन, इसका मतलब जिंक में का भी इस्तेमाल कर सकता है। टिन कैन एक्चुअली स्टील कैन विच हैव बीन कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ टिन, तो स्टील को आप टिन लेयर के साथ भी, टिन के साथ भी क्या कर सकते हैं, आप उसको जमा सकते हैं। ठीक है, लास्ट बच्चों आपके पास आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होती है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, a more reactive metal like zinc or magnesium is used, which will corrode in place of less reactive metal like iron. Magnesium is often employed to protect the steel in buried fuel tank and pipeline and ship hulls submerged in sea water. तो मैग्नीशियम को जो है हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो पाइपलाइन होती है उसके लिए, फ्यूल टैंक के अंदर जो होता है, या शिप को जो है वो, ताकि उसको भी जंग न, ज्यादा बार शिप जो होती है वो ज्यादातर पानी में रहती है, तो उसको जंग से बचाने के लिए जो है मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। द डिफरेंस इन द एक्टिविटी ऑफ टू मेटल्स मैग्नीशियम एंड आयरन काज अ करंट टू फ्लो बिटवीन देम। मैग्नीशियम और आयरन मेटल जो होती हैं, टू मेटल मैग्नीशियम आयरन काज करंट, उसके दिमाग करंट बहता रहता है, प्रोड्यूसिंग क्रूजन ऑन द मोर एक्टिव मेटल, प्रोटेक्ट द लेस एक्टिव मेटल आयरन। उसके साथ ज्यादा रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के साथ हम उसको क्या कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। यहाँ तक बच्चों आपने क्रूजन का जो टॉपिक है 16.14 वो अच्छे तरीके से करके आना है। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।